Assalamu alaikum, my dear viewers. Hope you all are doing well. As per announcement, I am going to start classes for the aspirants of CSS and other competitive examination, especially with a focus on CSS. So this is going to be my first video pertaining to the CSS examination. As you all know, when you are going to appear in competitive examination like CSS, what you have to do, first of all, you are supposed to select the subjects. This is undoubtedly a Herculean task to select the subjects. And after that, the stage comes how to buy books for different subjects. As you all know that the market is flooded with plethora of books on a single subject. When you go to the market and ask the bookseller to show books on any particular subject like English grammar and composition, essay writing, Islamiyat, or Pakistan Affairs, the bookseller shows you so many books. Whatever the book that he has, he shows. And then it becomes very difficult for you how to select the best one among many, because you cannot buy all the books. So you have to select the best among so many books. So what you have to do, I'm going to tell you that what kind of books you should select for a subject. It is undoubtedly a Herculean task to find the best one among so many. So in this video, I'm going to tell you the strategy to buy the best book for your subjects. तो आपने क्या करना है? When you go to the market, first of all, before going to the market, you have to go through the past papers of that subject for which you are going to buy books. Say for instance, आप खरीदने जा रहे हैं books for English grammar and composition, paper of English grammar and composition. तो आप क्या करेंगे? You have to go through the past papers of English grammar and composition roughly for 10 years. आप उसको ज़रूर देख लें. इससे क्या होगा? This will help you create an idea about the questions that you are going to have in your paper. तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस किस्म के सवाल जो हैं वो आपको पेपर में फेस करने पड़ेंगे. तो आप ज़रूर बिफोर बाइंग द बुक्स आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देख लेने हैं, कम से कम past 10 years के. And once you have gone through these papers for about 10 years, फिर आपने क्या करना है? You have to cast a glance upon this syllabi provided by FPSC pertaining to the different subjects. देखिए, अगर आप इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर के लिए बुक ख़रीदना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कोर्स आउटलाइन है क्या और FPSC की रिक्वायरमेंट क्या है. एक तो आपको क्वेश्चन पेपर से पता लग जाएगा और जो सेकंड चीज़ है वो है कोर्स आउटलाइन. कोर्स आउटलाइन से भी आपको पता लगेगा कि FPSC की रिक्वायरमेंट क्या है. अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो गलती करते हैं. वो क्या करते हैं कि देखिए, FPSC की कुछ रिकमेंडेड बुक्स भी हैं पर्टेनिंग टू, फॉर एग्जांपल मैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन और ऐसे राइटिंग ही पढ़ाऊंगा, तो मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करता हूं. तो उन्होंने कुछ बुक्स दी हुई हैं, वो बुक्स जो हैं वो हैं फॉर जनरल रीडिंग्स. देखिए, आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए वो बुक्स हैं. जस्ट लाइक इंग्लिश प्रैक्टिकल यूजेज है, बुक है माइकलसन की, वो क्या है? वो आपके बेस बनाने के लिए है. इंग्लिश प्रैक्टिकल ग्रामर है, ये यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश है. और डिफरेंट जो बुक्स उन्होंने रिकमेंड की हुई हैं FPSC वालों ने, वो असल में आपकी बेस बनाने के लिए हैं.
मगर क्या है, क्योंकि देखिए टाइम बड़ा शॉर्ट होता है ना, तो शॉर्ट टाइम में आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आप स्पेसिफिकली जो है वो बुक खरीदें जो आपकी कोर्स आउटलाइन को या सिलेबाई को कवर करे। ठीक है जी। देखें, अब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में आप जब इसकी बुक खरीदने जाएंगे मार्केट में, आपके पास कोर्स आउटलाइन ज़रूर होने चाहिए। जो सिलेबस दिया गया है वो ज़रूर होना चाहिए कि किस किस्म के सवालात आते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, कोर्स आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए। कीप कोर्स आउटलाइन विद यू, नंबर 1। अच्छा, फिर क्या करेंगे, देखिए आप बुक सेलर से कहते हैं कि हमें बुक्स दिखाएं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो वो बहुत ज़्यादा ढेर लगा देता है किताबों का, तो आपको सिलेक्शन में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। आप क्या करेंगे, आप बुक को खोलेंगे, आप इंडेक्स में जाएंगे और इंडेक्स में देखेंगे कि बुक का कंटेंट है क्या, और क्या आपकी जो गिवन कोर्स आउटलाइन है बाय FPSC क्या उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो इंडेक्स जो है वो मीट करती है कोर्स आउटलाइन को, तो फिर तो आपको ज़रूर वो किताब खरीदनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसी बुक है जो आपकी कोर्स आउटलाइन को मीट ही नहीं करती, वो कितनी भी अच्छी हो, आपके लिए वो यूजलेस है, आपके लिए दैट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम। सो फिर आपने क्या करना है, आप देखेंगे इंडेक्स को। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर होता है ना, तो उसमें जो पहला सवाल होता है वो होता है इंग्लिश प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। आपने देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रेसी राइटिंग उसमें है या नहीं है। और द सेकंड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल होता है रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन का। आपने देखना है कि रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन से रिलेटेड स्टफ मौजूद है बुक में या नहीं है। फिर सवाल होता है जैसे कि एक क्वेश्चन होता है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का होता है। आपने देखना है कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बुक में मवाद मौजूद है या नहीं है। सिमिलरली पंक्चुएशन है, इसके रिलेटेड भी मवाद होना चाहिए बुक में। और इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स आते हैं, और इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि वो जो सवालात आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर में, आया वो जो बुक है वो आपकी कोर्स आउटलाइन को और आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं कर रही। अगर मीट कर रही है तो दैट्स गुड, तो आपने खरीदनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, नंबर 1 जो चीज़ मैंने आपको बताई, आपने पास पेपर्स जो है उनको देखना है, और नंबर 2 जो है आपने अपने पास कोर्स आउटलाइन रखनी है। कोर्स आउटलाइन आप अपने साथ रखें, और फिर अब बुक आप अपने साथ रखें जो आपको अच्छी लग रही है, वो फिर आप उसको कोर्स आउटलाइन के साथ देखें कि ये आया आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही। अच्छा जी, और तीसरी चीज़ जो होती है, देखें अब एक सब्जेक्ट पर देयर आर सो मेनी ऑथर्स हु हैव रिटन बुक्स ऑन वन सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पे यू विल फाइंड सो मेनी ऑथर्स, मगर आपने जो है वो ऑथर्स सिलेक्ट करना है कि जो वेल नोन हो और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो। और अभी तो ये है ना कि वो जो CSPs हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने भी बुक्स लिखी हुई हैं। आप ज़्यादातर फोकस करेंगे उन राइटर्स पर जो वेल नोन हैं और जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में दे हैव प्रूव्ड देयर मेटल, अपना लोहा मनवाया है। आप उनकी बुक्स खरीदें, और CSP ऑफिसर्स जो हैं उनकी जो रिटन बुक्स हैं आप उनको प्रेफर करें, और वेल नोन ऑथर्स की जो है वो बुक्स जो है वो खरीदें। तो तीसरी चीज़ ये है कि बाय द बुक्स रिटन बाय वेल नोन ऑथर्स, those authors who have a great command over their subjects. They are subject specialists having great expertise in their subjects. So उन authors की आप बुक्स खरीदें। और ये तो थी थर्ड चीज़। अच्छा, और फोर्थ चीज़ आपने क्या देखनी है कि लैंग्वेज देखें बुक की। लैंग्वेज इंतहाई ज़रूरी है। देखिए मार्केट में सब स्टैंडर्ड भी बुक्स हैं, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, उनमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, उनमें जो है वर्ड्स जो वो इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, हर सब्जेक्ट के आपको पता है प्रॉपर जार्गन होते हैं, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है ना, अगर कोई बुक जो है
उसमें आप देखते हैं कि प्रॉपर टर्मिनोलॉजी हैज़ नॉट बीन यूज्ड, तो आप ऐसी बुक भी ना खरीदें। लैंग्वेज असल में बुक बता रही होती है, लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज बता रही होती है तो कि किस किस्म का राइटर है और उसको अपने सब्जेक्ट पर जो है वो कितनी कमांड है। तो आपने जो है क्या करना है, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज ऑफ द बुक जो है वो भी आपने देखनी है। तो लैंग्वेज ऑफ द बुक डज काउंट, ठीक है। फोर्थ चीज़ ये है। अच्छा, लैंग्वेज में आपने देखना है कि एक्यूरेट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं या नहीं की गई, वर्ड्स प्रॉपर इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए, एग्जाम्पल्स और इलिस्ट्रेशंस जो हैं वो दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि बुक जो है वो आउटमोडेड तो नहीं है, आउटडेटेड तो नहीं है, वो आपका जो गिवन सिलेबाई है उसको मीट कर रही है या नहीं कर रही, कोर्स आउटलाइन को मीट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, अप टू डेट है या नहीं है जो गिवन सिलेबस है बाय एफपीएससी, ठीक है। द फोर्थ चीज़ जो है ये है जो आपको यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट बिफोर बाइंग द बुक्स फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन। और जो फिफ्थ चीज़ है वो क्या, वो कहा जाता है ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कवर बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, आप जाएं बुक स्टोर्स पर, बड़े अट्रैक्टिव कवर्स हैं, मगर जब आप बुक्स को खोलते हैं तो वो कहते हैं मच एडू अबाउट नथिंग, कि बुक में जो है वो खोदा पार निकला चूहा होता है।